Good morning, students. So, I hope you all are doing well. In our last class, we discussed the chapter pronoun, right? So, we completed up to demonstrative pronoun, and now let's continue from the interrogative pronoun. Read the sentences. Whom did you call up? Which of these boxes is yours? What is the name of that girl? Okay, so look at the words whom, which, what. Okay, whom denotes to a person, which denotes to a thing, what denotes to a thing, right? So pronouns that help to ask questions are called interrogative pronouns. This is very easy. Okay, what are interrogative pronouns? The pronouns which are used to ask questions about a person, thing. Okay, so these are known as interrogative questions. So when will we use what kind of pronoun? Look, when framing questions, who or whom is used for a person or a group of people. When you are framing question and you will have to ask about a person or a group of people, then you will have to use who or whom. Okay, who or whom pronoun, interrogative pronouns can be used for asking question about a person or group of people. Okay, what is used only for things. What can be used only for things and not about people. Okay, what is your name? Okay, what is that? So what is only used for things in as an interrogative pronoun. Okay, as an interrogative pronoun, what is used only for things and not for people. Which is used for a person or an object. Which, the interrogative pronoun which can be used for a person. When you will have to ask about a person or an object, then you can use which. Okay, so these types of word which denotes a person or things and are used to ask question about a person or thing, then they are known as interrogative pronouns. Okay, pronouns that help to ask questions. The pronouns that are used to ask questions. जिस pronouns को use करके question बनाया जाए, question पूछा जाए, उसे interrogative pronoun कहते हैं. Clear? Now look at these sentences. I poured myself a cup of coffee. I poured myself a cup of coffee. मैंने अपने लिए एक कप कॉफी लिया. I myself am to blame for the confusion. मैं इस कंफ्यूजन के लिए खुद को ब्लेम करती हूँ. I myself am to blame for the confusion. Okay, देखो, in the first sentence I poured myself a coffee. तो मैंने खुद के लिए कुछ किया. ठीक है, here I am the doer, right? काम, एक्शन किसने किया? I, subject. Okay, and I poured myself a cup of coffee. यहाँ पे ये myself कौन है? ये भी मैं ही हूँ, है ना? मैंने अपने लिए एक कप कॉफी लिया. तो ये प्रोनाउन क्या करता है? यह लगता है कि ये सब्जेक्ट ही इस एक्शन का रिसीवर है. मतलब एक्शन क्या है यहाँ पे? poured, काम, वर्ब है ना? और ये किसके लिए हुआ है? ये मेरे ही लिए हुआ है. मैंने किया है और मैंने अपने लिए किया है. ठीक है, तो मैं क्या हूँ? ये आई इज द सब्जेक्ट. ठीक है, मैं सब्जेक्ट. मैं क्या है? सब्जेक्ट. मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट. सो आई इज द डूअर और सब्जेक्ट, एंड द सब्जेक्ट इटसेल्फ इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. मतलब जो काम हुआ है उसका असर सब्जेक्ट पे ही पड़ा है. सब्जेक्ट नहीं किया है और उसका असर सब्जेक्ट पे ही पड़ा है. बट इन द सेकेंड सेंटेंस व्हाट हैपेंड? आई माई सेल्फ एम टू ब्लेम फॉर द कंफ्यूजन. मैंने खुद ये काम किया है. तो
ये माई सेल्फ क्या कर रहा है, ये आई पर एम्फेसाइज कर रहा है, इम्पोर्टेंट दे रहा है, मतलब जोर देकर कुछ कह रहा है कि मैंने ये काम खुद किया है, मैंने ये काम किया है, या मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, बट मैंने ये काम खुद किया है, मैं खुद अपने आप पर ब्लेम करती हूँ। तो ये थोड़ा जोर दे के बोला गया है ना। तो ऐसे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उन्होंने क्या कहते हैं, देखो। प्रिया लव सिंगिंग टू हर सेल्फ, ठीक है, प्रिया लव सिंगिंग टू हर सेल्फ, प्रिया खुद गाना गाना पसंद करती है। शी हर सेल्फ डज नॉट सीम टू वरीड अबाउट हर रिजल्ट्स, वो खुद इतना ज्यादा चिंता नहीं करती है रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर भी देखो, प्रिया गाना पसंद करती है, ठीक है, और प्रिया खुद ही गाना अपने आप गाना, मतलब खुद में गुनगुनाना या गाना पसंद करती है। तो यहाँ प्रिया है सब्जेक्ट, और ये है हर सेल्फ भी प्रिया ही है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान को दिखा रहा है, एक ही इंसान के बारे में बता रहा है, और जो प्रिया जो कर रही है उसका असर खुद उसी पर पड़ रहा है। शी इज द रिसीवर ऑफ दैट एक्शन, है ना। शी हर सेल्फ डज नॉट सीम टू वरीड अबाउट हर रिजल्ट, वो रिजल्ट के बारे में वो खुद कोई चिंता नहीं करती। वो तो यहाँ पे वो इस बात में शी हर सेल्फ डजंट सीम टू वरीड अबाउट हर रिजल्ट, वो खुद इतना चिंता नहीं करती। तो इसीलिए इसका लग रहा है जैसे कि इस बात में शी के ऊपर थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पेयर, मतलब हर जोड़े में, इस जोड़े का और उस जोड़े पिछले पेज के जोड़े में, जोड़ा के पेयर, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पेयर द हाईलाइटेड प्रोनाउन माई सेल्फ एंड हर सेल्फ रिसीव्स द एक्शन ऑफ दैट सब्जेक्ट। मैंने कहा था ना कि जो वहां पे फर्स्ट सेंटेंस था, जो क्या था, फर्स्ट सेंटेंस था कि आई पोर्ड माई सेल्फ ए कप ऑफ कॉफी, आई पोर्ड माई सेल्फ ए कप ऑफ कॉफी। तो यहाँ पे माई सेल्फ और यहाँ का जो हर सेल्फ है वो क्या करते हैं, लगता है जैसे कि these are the receiver of the subject, okay, the pronoun sorry they are the receiver of the they receive the action of the subject. The highlighted pronouns tell us that the subject is the receiver of the action, okay, subject ही उस अपने एक्शन का रिसीवर खुद है, मतलब उसका असर, उसका इम्पैक्ट उस पर ही पड़ता है, ठीक है। तो आई और प्रिया, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, उस सेंटेंस में था आई था ना सब्जेक्ट, आई पोर्ड माई सेल्फ ए कप ऑफ कॉफी, सो आई था सब्जेक्ट वहां पे, और इस सेंटेंस में प्रिया है सब्जेक्ट, है ना। तो उन्होंने जो काम किया है उसका असर उन्हीं पर पड़ा है, हर सेल्फ प्रिया पर और माई सेल्फ आई पर, ओके। सो इन द सेकेंड सेंटेंस ऑफ ईच पेयर द हाईलाइटेड प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस। और सेकंड सेंटेंसेस में, जो वहां पे सेकंड सेंटेंस में क्या था कि आई माई सेल्फ एम टू ब्लेम फॉर द कंफ्यूजन, आई माई सेल्फ हैव टू ब्लेम फॉर द कंफ्यूजन, मैं इस कंफ्यूजन के लिए खुद पे ही ब्लेम करता हूँ। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है और यहाँ पे जो हर सेल्फ है, ये आई पर और शी सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए कहा गया है, अपने बात को जोर देके कहने के लिए, बताने के लिए ये सेंटेंस एम्फेसिस किया गया है। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इम्पोर्टेंस देके, जोर देकर कहना, किसी बात पर खास अटेंशन देके बताना, ठीक है। तो देखो, ए प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स दैट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स और टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो सब्जेक्ट जो प्रोनाउन क्या करता है, जो प्रोनाउन बताता है हमें दैट द सब्जेक्ट इज द what does the subject does means the action done by the subject reflects upon himself only, okay. The pronouns which receive the action as an object by themselves, then it is known as reflexive pronouns. Means here the highlighted words like
that myself and herself in the first sentences are the reflexive pronouns because the action of the subject reflects upon the subject itself. मतलब जो सब्जेक्ट जो काम करता है उसका असर उसी पे पड़ता है. तो ऐसा अगर हमको मिलेगा जब हम लोग को पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब तुमको दिखेगा कि एक सब्जेक्ट कुछ कर रहा है और उसका असर उसी पे खुद पड़ रहा है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे. ओके. एंड जैसे कि मोर एग्जांपल्स, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट किया. तो हिमसेल्फ उसी ही के बारे में है ना, उसी सब्जेक्ट के बारे में है. सो ही हर्ट हिमसेल्फ, यहाँ पे ही है सब्जेक्ट और हिमसेल्फ है ऑब्जेक्ट, और ये एक ही इंसान को बता रहा है. तो ही ने जो काम किया उससे उसको खुद ही को असर हुआ. ओके. ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने जो काम किया उसका उसी पर असर हुआ. हर्ट वही हुआ है ना. सो और नेक्स्ट, द कैट लिक्ड इटसेल्फ, कैट ने खुद को लिक किया. तो दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके. जहाँ पे एक्शन जो करता है उसका असर खुद ही पर पड़ता है, सब्जेक्ट के ऊपर. सब्जेक्ट जो करता है सब्जेक्ट के ऊपर ही उसका असर पड़ता है. ओके. A pronoun that is used for the sake of emphasis is called emphasizing pronoun. और जो प्रोनाउन क्या करता है, जो प्रोनाउन किसी को मतलब किसी बात का इम्पोर्टेंस देने के लिए, किसी बात पे ज्यादा अटेंशन देने के लिए यूज होता है, उसे हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं. एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है किसी बात को ज्यादा जोर देकर कहना, इंपॉर्टेंस देकर कहना. ठीक है. तो द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. जैसे कि मैंने ये काम खुद किया. ठीक है. आई माई सेल्फ क्लोज द डोर, ही हिमसेल्फ शुड फिनिश द वर्क. तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं उनको क्या कहते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस. ज्यादातर बच्चे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के जो वर्ड हैं और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस के जो वर्ड हैं वो सेम होते हैं. माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, यही वर्ड यूज होते हैं. लेकिन तुमको थोड़ा समझ के यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुमको लगेगा कि द एक्शन जो मतलब जो सब्जेक्ट जो कर रहा है उसका असर उसी पर पड़ रहा है, तो ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एंड जब तुमको लगेगा कि सेंटेंस में किसी बात पर या किसी प्रोनाउन पर जोर देकर कुछ कहा जा रहा है, अटेंशन, स्पेशल अटेंशन देके आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ हैज डन, तो इस तरह उसे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहेंगे. सो आई होप यू आर क्लियर. नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस. ईच ऑफ द बॉक्सेस was opened. I haven't read either of the books. Neither of them will admit to having broken the vase. In each of the sentences, the highlighted pronoun indicates people or things individually rather than as a group. Okay, जैसे कि each of the boxes was opened. तो बहुत सारे बॉक्स हैं, उसमें से each of the मतलब एक एक करके सारे बॉक्सेस को खोला गया था. ओके. आई हैवंट रेड एदर ऑफ द बुक्स. दो बुक्सेस थे, दो बुक्स होंगे, है ना. एदर मतलब दो चीजों के लिए यूज होता है, एदर. ओके. एदर मतलब दो चीजों के लिए एदर यूज किया जाता है. जब दो चीज होंगे और उसमें से किसी एक के बारे में बात किया जाएगा तब एदर यूज होता है. जैसे आई हैवंट रेड एदर ऑफ द बुक्स, मतलब मैं दोनों में से मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी है. ठीक है. आई हैवंट रेड एदर ऑफ द बुक्स, मैं दोनों में से मैंने एक भी नहीं पढ़ी है. ठीक है. एक भी बुक नहीं पढ़ी है, एक भी, एदर. ठीक है. नेदर ऑफ देम विल एडमिट टू हैविंग ब्रोकन द वाज, दोनों में से कोई नहीं मतलब एडमिट करेगा कि उसने वास को तोड़ा है. नेदर की कब यूज होता है, जब हम दो चीजों की बात करें और दोनों में से किसी ने भी नहीं किया, ऐसा होगा तो नेदर यूज करेंगे. एदर भी दो चीजों के लिए यूज होता है, नेदर भी दो चीजों के लिए यूज होता है ना. लेकिन एदर कब होता है, जब हम बोलेंगे कि दोनों में से किसी एक के बारे में, तब एदर. और नेदर कब, जब दोनों में से किसी ने नहीं, ऐसा होगा तो नेदर यूज करेंगे. ओके. तो इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस द हाईलाइटेड प्रोनाउन इंडिकेट्स पीपल और थिंग इंडिविजुअली, है ना. बहुत सारे लोगों में से, एक से ज्यादा लोगों में से, है ना, बहुत सारे लोगों में से और एक से ज्यादा लोगों में से एक एक की बात की जाएगी, तब उसे रादर देन एज ए ग्रुप, मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग या ज्यादा चीजें हैं लेकिन उसमें से एक के बारे में बात हो रही है ना. जैसे कि बॉक्सेस ज्यादा हैं, उसमें से ईच ऑफ द मतलब हर एक बॉक्स को खोला गया, हर एक. ठीक है.
haven't read either of the books. दो ज्यादा बुक्स हैं लेकिन उसमें से सिर्फ एक की बात हो रही है, ठीक है, एक भी बुक मैंने नहीं पढ़ा. neither of them will admit, तो दो लोग हैं उनमें से एक की बात हो रही है, एक भी नहीं बोलेंगे, ठीक है. तो ऐसे जब यूज होगा तब हम क्या बोलेंगे, मतलब एक ग्रुप में नहीं और इंडिविजुअली जब बात करेंगे तब उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. प्रोनाउन दैट शो दैट पीपल और थिंग्स आर टेकन सिंगली और इन सेपरेट ग्रुप्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. तो इस तरह से तुमको पता चलेगा कि जब एक ही सेंटेंस में ग्रुप होने के बावजूद भी, ज्यादा लोग या ज्यादा चीजें होने के बावजूद भी जब एक चीज या एक ग्रुप के बारे में बात किया जाएगा तब मतलब एक एक करके ऐसा, ठीक है, एक बारी में एक चीज, ठीक है, तो एक एक करके बात किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, दे आर ऑलवेज सिंगुलर, दे आर known as distributive pronouns. So here the words each, either, neither are known as distributive pronouns. They are always singular and are therefore followed by the verb in the singular. ये हमेशा singular form में रहते हैं, ठीक है. जैसे कि each हमेशा singular, each of the boxes was opened. देखो अगर ये प्लूरल होता तो हम लोग where लिखना पड़ता ना, where opened. तो each of the boxes was open. boxes के लिए ये was यूज नहीं हुआ है, ये was each के लिए यूज हुआ है. each of the boxes was open. I haven't read either of the books. neither of them will admit. देखो neither of them will admit. तो इस तरह का वर्ड वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं. ओके, सो दीज आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. नाउ लुक एट दैट. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर. यस वी अगर ये हमेशा हमको वर्ब सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, मतलब एज ए अगर वो सिंगुलर और प्लूरल हम लोग देख के भी लिखते हैं ना वर्ब को. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस लिखने के समय हमेशा हम लोग को वर्ब सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा. ओके, जैसे कि ईच ऑफ द बॉक्सेस वाज ओपन, ये देखो वर्ब. ईदर ऑफ द, आई हैवंट रेड ईदर ऑफ द बुक्स, ऐसे, ठीक है. नीदर ऑफ देम विल एडमिट. ओके, हमेशा हमको सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. नाउ रीड दिस सेंटेंसेस. वन मस्ट प्रिजर्व वंस ट्रेडिशंस. मैनी हैड प्रपोज्ड द आइडिया बट फ्यू वोटेड इन इट्स फेवर लेटर. Okay, so in these sentences, look at them. One, many, few. Okay, they denote. They doesn't denote. They do not denote any particular person or thing. Right? They are used as in general. In the above sentences, the highlighted pronouns refer to nouns that are understood or implied rather than stated in particular. Okay. In the lines here, the highlighted words one, many, few, okay, they refer to nouns that are understood or implied rather than stated in particular. मतलब किसी को particularly नहीं कहा जाता, इसको समझा जाता है कि ये ऐसे ही, मतलब someone, ठीक है, somebody. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है पता नहीं, लेकिन specify नहीं किया जाता बस. Okay, they don't specify. Pronouns that refer to some person or thing in a general way. Okay, and do not refer to any person in particular way. Okay, then it is known as indefinite pronoun. Look at that. Pronouns that do not refer to any person in a particular are called indefinite pronouns. Okay, जो pronoun किसी को particularly denote ना करे. Okay, they don't denote any person or people particularly are known as pronouns. They are used in generally. Generally. Some other indefinite pronouns are several, all, both, anyone, everyone, someone, everybody, nobody, few, many, okay, anything, each, none, one, ऐसे these words are known as indefinite pronouns because indefinite means अनिर्दिष्ट, right? Definite means निर्दिष्ट किसी के बारे में, और indefinite मतलब अनिर्दिष्ट. When you are not specifying anyone, okay, you are not indicating to a particular person, you are just telling the pronoun in general, telling about a person in general, telling about some person in general, not in a particular way. Okay, they are known as indefinite pronoun. Now look at these sentences.
The two sisters always try to help one another. They waved goodbye to each other as they parted. So look at the sentences. The subjects are, or the subjects are doing the action together, right? The highlighted pronouns indicate that two or more people carry out an action and receive its effect at the same time. Subject क्या करते हैं, टू और मोर, तुमको लिखेगा कि दो या दो से ज्यादा लोग एक ही साथ वो काम कर रहे हैं और उसका असर भी दोनों पर एक ही साथ ही पड़ रहा है. ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग प्रोनाउन को कहेंगे हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. प्रोनाउंस दैट डिनोट म्यूचुअल एक्शन आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. म्यूचुअल क्या होता है? म्यूचुअल मतलब जब एक ही साथ एक ही मत से एक ही हिसाब से लोग कुछ करते हैं. ओके, और उसका असर भी उन्हीं पर पड़ता है. जैसे कि द टू सिस्टर्स ऑलवेज ट्राई टू हेल्प वन अनदर. टू सिस्टर साथ में हेल्प करते हैं और इस हेल्प का असर दोनों को एक साथ पड़ता है क्योंकि वो दोनों एक साथ एक दूसरे की मदद करते हैं. ओके, दे वेव्ड गुड बाय टू ईच अदर एज दे पार्टेड. दोनों अलग होते समय दोनों एक दूसरे को गुड बाय, उन्होंने हाथ हिलाकर गुड बाय कहा, तो वो दोनों ने ही एक्शन किया और दोनों ने ही एक्शन को पाया भी. एक ने दूसरे को किया, दूसरे ने पहले को किया, तो ऐसे दोनों को ये एक्शन का रिसीव किया उन्होंने. ठीक है, उसका असर भी मतलब लोगों को दिखा. सिर्फ एक ने किया और एक ने देखा ऐसा नहीं, एक दोनों ने किया और दोनों ने देखा. ओके, तो सो दिस टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. वन एनदर, ईच अदर. ओके, दिस टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. दिस इज वेरी इजी. नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस. द बुक which you had suggested was very interesting. Okay, he is a boy who always completes his work on time. This is the house that was sold by my uncle. Okay, in these sentences, look at them. There are some words which denotes to the subject itself. In each of these sentences, the highlighted pronoun relates to a noun, book, boy, or house. Here, the highlighted words, these are the highlighted pronouns. Okay, which, who, that. Okay, these are the pronouns and they denote to a particular thing, like which. Here in the sentence, which denotes to a book, right? The book which you had suggested. जो book, वो book जो तुमने suggest किया था. The book which you had suggested. Here the pronoun which is used for the noun book. He is a boy who always complete. Here the noun boy, वो noun है ना boy, और who उसी बॉय को डिनोट कर रहा है, जिस लड़के ने. ओके, ही इज ए बॉय हु ऑलवेज कंप्लीट. ये वो लड़का है जो हमेशा अपना काम करता है. ओके, सो इन दिस सेंटेंस हु इज डिनोटिंग टू द बॉय, द नाउन बॉय. दिस इज द हाउस दैट वाज सोल्ड बाय माय अंकल. सो दिस इज द हाउस दैट वाज, दिस इज द हाउस दैट वाज. सो दैट इज डिनोटिंग टू द हाउस. Okay, the noun house, the noun is house and the pronoun that is used for the noun house. The pronoun who is used for the noun boy. Okay, to the underline words that follow. Then which, the book which you had suggested, always completed and was sold by my uncle. So these are the words, the pronouns which are used to denote these nouns. Okay, and they relate the two things, the noun and this underlined area. In each of these sentences, the highlighted pronoun relates a noun, book, boy and house to the underlined words that follow. मतलब ये बीच में क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, द नाउन को और इस बाकी सेंटेंस को. ठीक है, देन द बुक व्हिच इज लिंकिंग बिटवीन द टू. ओके, इन दोनों को जोड़ रहा है. ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ए प्रोनाउन दैट रिलेट्स ए नाउन दैट comes before it to a group of words that follow is called relative pronoun. मतलब जो प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को और बाकी सेंटेंस को जोड़ता है, रिलेट करता है. ओके, देन मतलब बाकी सेंटेंस का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब बाकी सेंटेंस जो है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, जैसे कि यू हैड सजेस्टेड, ऑलवेज कंप्लीटेड हिज वर्क. सो इस एरिया को और नाउन को जोड़ कौन रहा है, ये
pronoun. So these types of pronouns which are used to relate the noun, okay, that comes before, जो पहले आता है, जो noun पहले आता है उसे और बाकी सेंटेंस को जोड़ता है, उसे कहते हैं related pronouns. Okay. A related pronoun should always be placed close to its antecedent. Antecedent बताया था ना मैंने, जो क्या होता है, जिस नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया है उस नाउन को एंटीसीडेंट कहेंगे. ठीक है, किसी नाउन के लिए, जैसे कि यहाँ पे बॉय है, द बॉय हु इज इन द ट्रेन इज माई ब्रदर. तो बॉय क्या है, नाउन, और हु उसका प्रोनाउन है, तो ये बॉय बन गया एंटीसीडेंट. ठीक है, नाउन जो होता है वो एंटीसीडेंट बन जाता है. बॉय एंटीसीडेंट इज बॉय एंड द प्रोनाउन इज हु. सो ए रिलेटिव प्रोनाउन शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड क्लोज टू इट्स एंटीसीडेंट. मतलब वो एंटीसीडेंट और उसका रिलेटिव प्रोनाउन को साथ में ही लिखा जाता है, मतलब साथ में बिठाया जाता है. द बॉय हु इज इन द ट्रेन इज माई ब्रदर. वो लड़का जो ट्रेन में बैठा है वो मेरा भाई है. सो द antecedent is boy and the pronoun is who and they are placed together. Okay, close, they are placed closer. We do not say the boy is my brother who is in the room. ऐसे हम लोग नहीं कह सकते. The boy is my brother who is in the room. हम लोग को बोलना पड़ेगा the boy who is in the train. The boy who is in the train is my brother. ऐसे. Okay, boy और who को दूर दूर नहीं लिख सकते, पास लिखना होता है. Okay? The most frequently used relative pronouns are who, whose, whom, which and that. These are the mostly used, जो बार बार यूज होता है ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. Let us learn more about the uses of each. तो ये कहाँ कैसे यूज होते हैं, चलो जानते हैं. The relative pronouns who and whom are used only for people irrespective of gender or number. Who और whom बिना जेंडर और नंबर को जाने हम लोग, मतलब जेंडर और नंबर के बारे में ये परवाह नहीं करता. ठीक है, होम और होम हम कब यूज करते हैं, ओनली फॉर पीपल, जब हम लोग इंसानों की बात कर रहे हैं, और तब हमें जेंडर और नंबर को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब में जाते हैं. हु और होम हर जेंडर में और हर नंबर में यूज किए जा सकते हैं. प्लूरल या हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या फिर मेल जेंडर हो, फीमेल जेंडर हो सकता है. Look at the sentences. Students who forget to bring their hall tickets will not be allowed to sit for the test. Students who forget to bring. Okay? Students who forget to bring. यहाँ पे students लड़का है, लड़की है या नंबर है, यहाँ पे ज्यादा नंबर है, प्लूरल है, स्टूडेंट्स है, तो इसीलिए इसका चेंज कुछ हुआ है क्या, हु का नहीं. स्टूडेंट्स हु फॉरगेट टू ब्रिंग देयर हॉल टिकट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स तो पीपल है ना, लोग हैं, तो लोगों के बारे में हु यूज होता है. तो क्लियर. The teacher whom you were supposed to meet has left already. जिस टीचर से आप मिलने के लिए खड़े हैं वो चले गए हैं ऑलरेडी. यहाँ पे भी होम क्यों यूज हुआ है, क्योंकि इंसान के लिए यूज होता है और इसमें कोई चेंजेस भी नहीं आए हैं टीचर की वजह से. ठीक है, द टीचर होम यू वेर सपोज टू मीट, जिससे तुम मिलना चाहते हो. जब सेंटेंस को पढ़ोगे और तुमको लगेगा कि ऐसे कि द मैन हु इज इन द कार, तो यहाँ पे जो, वो आदमी जो कार के अंदर है, तो जो यूज होता है. ठीक है, हिंदी में. और द टीचर होम यू मेंट, तो यहाँ पे होम जिसे के हिसाब से यूज होगा. टीचर या जिसे, या फिर वो टीचर जिन्हें तुम मिलना चाहते थे, तो जिन्हें और जिसे अगर कहेगा तो होम यूज होगा. ओके, क्लियर. जो, वो आदमी जो कर रहा है, वो आदमी जो ये काम कर रहा है, वो आदमी जो ये काम कर रहा है, इसमें हु यूज होगा. और वो आदमी जिसे तुम मिलना चाहते हो या वो आदमी जिन्हें तुम मिलना चाहते हो, वहां जिन्हें या जिसे होगा तो होम यूज होगा. नोट दैट हु इज यूज्ड व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन फंक्शंस एज द सब्जेक्ट. हु कब यूज हो रहा है, जब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है. स्टूडेंट्स जो, ठीक है, यहाँ पे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट जैसा फंक्शन कर रहा है. वेयर एज होम इज यूज्ड व्हेन द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट, और होम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है. द टीचर होम यू वेयर सपोज, तो यहाँ पे ये होम टीचर सब्जेक्ट है, द टीचर है सब्जेक्ट और होम उसका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. और स्टूडेंट्स हु फॉरगेट टू, मतलब इन्होंने ये काम किया है. स्टूडेंट्स हु, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ही सब्जेक्ट है और हु इसी सब्जेक्ट के रूप में ही काम कर रहा है. स्टूडेंट्स जो
ठीक है, और द टीचर होम, द टीचर जिन्हें तुम भूल गए, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो होम इज यूज्ड व्हेन द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट, तो ये होम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। ओके, सो आई होप यू ऑल आर क्लियर। अगर हिंदी में जैसे मैंने समझाया था ट्रिक यूज करोगे तो हो जाएगा, इजी होगा ज्यादा, ये हु और होम के बारे में। नेक्स्ट, वी यूज हुज टू रेफर टू बोथ पीपल एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हुज हम लोग पीपल के लिए, इंसानों के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट्स वेयर पोर। टीचर ने उन बच्चों को डांटा जिनके रिजल्ट पोर आए, तो यहाँ पे हुज इंसानों के लिए यूज हुआ है ना। और देखो, द बाइसाइकिल हुज लैम्प वॉज मिसिंग बिलोंग्स टू रतुल, तो यहाँ पे हुज बाइसाइकिल के लिए यूज हुआ है जो नॉन लिविंग थिंग है। ओके, समटाइम्स द रिलेटिव प्रोनाउन मे बी ओमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी देखोगे कि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, मिसिंग है, वो समझ में आता है पढ़ने के बाद। दिस इज द हाउस इन विच माई फादर वॉज बॉर्न, दिस इज द हाउस माई फादर वॉज बॉर्न। यहाँ पे इन विच अगर तुम नहीं लिखोगे तब भी समझा जा सकता है। दिस इज द हाउस इन विच माई फादर वॉज बॉर्न, दिस इज द हाउस माई फादर वॉज बॉर्न, ठीक है। इन विच यहाँ पे ओमिटेड है, गायब है, ठीक है, उसको पढ़ मतलब समझ में आएगा बस। डिड यू नोटिस दैट द पोजिशन ऑफ द प्रीपोजिशन हैज चेंज्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस पोजिशन आई मीन इन जो प्रीपोजिशन था उसका पोजिशन चेंज हो गया है। दिस इज द हाउस इन विच माई फादर वॉज बॉर्न, और जब हम लोगों ने ये विच है ना, विच है क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच को हटा दिया तब इन का पोजीशन चेंज होकर वो पीछे चला गया, इन पीछे आ गया। दिस इज द हाउस माई फादर वॉज बॉर्न इन, ठीक है, इन का पोजीशन चेंज हो जाएगा। ठीक, नाउ वी कैन यूज विच फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। विच का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में बात करते वक्त, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द स्पैरोज विच लॉस्ट देयर होम इन द स्टॉर्म आर बिल्डिंग अ न्यू नेस्ट। द स्पैरोज विच, यहाँ पे एनिमल्स के बारे में विच यूज हुआ है। वो स्पैरोज जिन्होंने घर टूट गया था जिसका, वो लोगों ने वापस घर बना रहे हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूजुअली रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। द रिलेटिव प्रोनाउन दैट कब यूज होता है, यूजुअली ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये इंसानों के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी वेयर द फर्स्ट टू फाइंड द क्लूज दैट वुड लीड अस टू द हिडन ट्रेजर। हम ही थे जो जिनको ये क्लू फर्स्ट मिला, सबसे पहले मिला, तो दैट इज यूज्ड फॉर द क्लूज। Okay, so non-living things, and we'll get more lines, and you'll understand that that is used sometimes for people also. Okay, or so the uses of the relative pronouns also you have got them. Okay, so I hope the chapter is over here, and we have discussed all the types of pronouns, and I hope you all have understood. So if you have any doubt and have any question, then ask me. The class is over right now. Thank you.